Hello students, welcome back. This is Sachin Pandey and I welcome you all once again in my YouTube channel. Today I have brought a very special and important video. This video will really be important for the students of graduation, the students who have opted English literature in their BA Part 1 Allahabad University, as well as those students who are preparing for UGC NET examination, TGT, PGT or LT grade examination. For those students, this video will be an icing on the cake. So I want your full sincerity and attention. At the end of this video, I will be uploading the detailed notes. Whatever I am teaching, the complete notes I will be uploading. You can have a snapshot of it and prepare your own notes. So today's topic is metaphysical poets and metaphysical poetry. Metaphysical poetry and metaphysical poets. So before we unravel, before we have a detailed analysis of this term, let's understand the term just to make your concept clear. As you all must be knowing that English poetry can be divided into certain ages. You must have heard Anglo-Saxon poetry, classical poetry, neoclassical poetry, metaphysical poetry, romantic poetry, modern poetry. So out of these, today we are going to discuss metaphysical poetry and some important poets of this age. So let's understand, let's unravel the term metaphysical. If we break this word into two parts, meta and physical. Meta means something which is beyond or above, meta, and physical refers to physical world. Metaphysical means which is beyond the physical world, which is beyond the science, जो साइंस से भी कहीं आगे है, जो साइंस के भी बियॉन्ड में है, that is metaphysical. So metaphysical, if we understand metaphysical poetry, we need to understand, in other words we can say it's a spiritual poetry. A spiritual poetry which is based on spirituality. The poets of this age, they composed their poems, their writings based on spirituality. Sometimes questions may be, it may be asked, what are the characteristics of metaphysical poetry? So actually theme of metaphysical poetry. So metaphysical poetry, first thing is that you should know the concept. This definition should be clear. Meta and physical. Meta refers to something which is beyond or above. Physical refers to physical world. So metaphysical poetry, the poets of this age, they compose their poems on the theme of spirituality. Their writings were based on the concept of God, love, religion, abstract concepts, or Christianity. They were, means their thoughts were intellectual. Metaphysical poets were men of learning. Walter Scott, he said that, once Walter Scott, he said that Elizabethans, the poets of Elizabethan period, Shakespearean age, Elizabethans used to play with words, but metaphysical poets played with thoughts because they were men of learning. They were highly intellectual poets. Their writings were based on intellectual, philosophical concepts. Or in other words, we can say they focused on carpe diem. Latin word carpe, C-A-R-P-E, diem, D-I-E-M. Carpe diem means seize the day. Seize the whole, means hold the day. These poets, they focused more on present, less on future. They never thought about future. Their focus was on present only. So, metaphysical poetry can be also called spiritual. It was a distinctive school of thought. These poets have a distinctive school of thought, distinctive thinking. Their poetry was based on the concept of
spirituality, God, religion, love, intellectual and philosophical concepts, Christianity, or carpe diem. Now the next question comes, who is called the father of metaphysics? In competitive examinations, this question may be asked, options में भी हो सकते हैं, MCQs भी हो सकते हैं. Who is called the father of metaphysics? जॉन डन. क्योंकि इसके बाद जो अगला वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो जॉन डन की फेमस पोएम द कैनोनाइजेशन ही है. लेकिन उस पोएम को, द कैनोनाइजेशन को समझने से पहले हमें समझना जरूरी है कि मेटाफिजिकल, आपने अपने BA फर्स्ट ईयर के इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में और भी पोएम्स आप आगे पढ़ोगे. सरोजिनी नायडू का द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन या रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि आप पढ़ोगे. ये सारे मेटाफिजिकल पोएट्स आप देखिए, इनकी पोएम में कहीं ना कहीं गॉड, स्पिरिचुअलिटी का आप एसेंस, यू कैन स्मेल द एसेंस ऑफ, odor of, aroma of spirituality in their writings. So John Donne was one of the greatest poets and he is called the father of metaphysics. और बेटा इनके जो contemporary poets थे, they all were 17th century. John Donne was a 17th century poet और इनके जो contemporary poets थे, एंड्रू मार्वेल साहब थे, एंड्रू मार्वेल, रिचर्ड कैश्यू, अब्राहम काउली, they all were metaphysical poets. John Donne, Andrew Marvell, Richard Cashew, Abraham Cowley, all they were metaphysical poets. और इन सभी ने कहीं ना कहीं अपनी पोएम्स में इन कॉन्सेप्ट्स को एलैबोरेट किया, इन कॉन्सेप्ट पर फोकस किया, इन कॉन्सेप्ट्स को एम्फेसाइज किया. मतलब आप कह सकते हो दे फोकस्ड, they emphasized, they laid much stress on learning, they laid much emphasis, stress on intellectual and philosophical concepts, obscurity of expression, और आप कह सकते हो their works, their poems, they had simplicity in, कह सकते हो meter, they had metrical simplicity. मीट्रिकल सिंप्लिसिटी हो, मीटर की बड़ी बहुत सिंपली इन्होंने अपने चीज को हाईलाइट किया अपने वर्क्स में. इन्होंने एक तरह से आप कह सकते हो ये जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे, इन्होंने अपने वर्क्स में ये चीज पर बहुत ज्यादा, इनको पढ़ने के बाद आपको लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं इट वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट एलिजाबेथन पोएट्री, इट वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट एलिजाबेथन्स. पढ़ने के बाद लगता है कि जैसे आप देखिए सर कि अगर आप एलिजाबेथन पीरियड के पोएट्स की बात करें, उस समय आप देखिए थिएटर्स बहुत ज्यादा होते थे शेक्सपियर के टाइम में, शेक्सपियरियन एज में. उन सब में आप देखिए मतलब ह्यूमंस पर फोकस किया, दे हैड मोर फोकस ऑन ह्यूमंस. लेकिन जैसे मिल्टन एज आया, मिल्टन एज को आपको पता होगा प्यूरिटन एज भी कहते हैं, जब मिल्टन एज आया तो कहीं ना कहीं वो थिंकिंग चेंज हुई. हम ह्यूमन से फोकस हटा करके गॉड की तरफ आते गए. जैसा आप देखिए मेटाफिजिकल पोएट आया, आप देखिए पूरा फोकस इंटेलेक्चुअलिटी पर, फिलॉसफी पर, स्पिरिचुअलिटी पर था. और साहब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पोएट्स थे, जॉन डन तो फादर हो गए मेटाफिजिक्स के, और जो इनके कंटेम्पोररी पोएट्स थे, इन्होंने सब लोगों ने एक ही ढर्रे पर एक चीज को इन्होंने हाईलाइट किया. लेकिन मजेदार बात यह है, इन सबको खुद ही नहीं पता था कि हम लोग मेटाफिजिकल पोएट्स हैं. इन सबको नहीं पता था कि हम लोग मेटाफिजिकल पोएट्स हैं. इस टर्म से इनका कोई लेना देना नहीं. इन्होंने अपनी वर्क्स में हाईलाइट किया इन चीजों को, इस थीम पर वर्क किया, कार्पे डियम पर फोकस किया, बट इन्होंने जरा भी इस बात पर फोकस नहीं किया कि कहीं पर मेटाफिजिकल जैसा टर्म भी हमारी पोएट्री में है. तो सर अब ये क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन तो एक क्लियर हो गया होगा, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मेटाफिजिक्स, जो मैंने क्लियर कर दिया, जॉन डन. और एक चीज पहले मैं बता दूं, एवरी नाउ एंड देन आई टेल माई स्टूडेंट्स, मैं उनसे बार बार कहता हूं, बच्चों से मैं बार बार, ये जो ग्रेजुएशन स्पेशली आप कह सकते हो, यू शुड, द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये ज्यादा समझना है. मैं उनको बार बार ये कहता हूं, if you really want to understand, if you really want to know about
metaphysical poets and metaphysical poetry, if you really want to understand, if you really want to know about metaphysical poets, metaphysical poetry, you should study John Donne. And if you want to know about John Donne, you should study, you should read his famous work, The Canonization. अगर आपको मेटाफिजिकल और मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में समझना है तो जॉन डन को पढ़िए। अगर जॉन डन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उनकी द कैनोनाइजेशन को आप जरूर पढ़ें। जब तक आपने उनकी कैनोनाइजेशन को नहीं पढ़ा, आप समझ नहीं पाएंगे कि जॉन डन इज द फादर ऑफ मेटाफिजिक्स। हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो मेटाफिजिकल टर्म था, क्योंकि ये लोग तो अनअवेयर थे, दे वर इग्नोरेंट, इनको तो पता ही नहीं था, ये टर्म को क्वाइन किसने किया? ये जो मेटाफिजिकल टर्म है ये एक्चुअली आया कहां से? सो आई एम टेलिंग, ये क्वेश्चन बन के आता है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ही वॉज 18th सेंचुरी पोएट। और ये सारे लोग जॉन डन, एंड्रू मार्वेल, रिचर्ड कैशू, थॉमस अब्राहम काउली, ये सारे लोग दे वर 17th सेंचुरी पोएट्स। सोचिए 100 सालों के लगभग अप्रॉक्स, ये एक सेंचुरी हो गया। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ही क्वाइंड दिस टर्म मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिकल और मेटाफिजिक्स, इट वॉज अ टर्म विच वॉज क्वाइंड बाय, इस टर्म को क्वाइन किसने किया? अब क्वेश्चन आता है, आई होप यू गेटिंग मी, यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मेटाफिजिक्स? जॉन डन। Who coined this term metaphysical? Dr. Samuel Johnson. He was an 18th century poet. ये कब की बात है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, when he was actually, उन्होंने बेटा एक बहुत ही फेमस बुक लिखा है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, he wrote a very famous book, Lives of the most eminent English poets. Lives of the most eminent means famous, eminent English poets. Lives of the most eminent English poets is a famous book written by Dr. Samuel Johnson. क्या किया इस बुक में इन्होंने? In this book, he has compiled the biography of 52 great poets. 52 poets की बायोग्राफी को इन्होंने लिखा है इसी बुक में। And when he was writing the biography of Abraham Cowley, सैमुअल जॉनसन साहब जब अब्राहम काउली की बायोग्राफी लिख रहे थे, तब ये उनको समझ अचानक से उनके माइंड में आया। उन्होंने देखा, करे यार, ये सारे पोएट्स तो एक ही चीज पर, एक ही धरने पर काम किए हुए हैं। तब उनको समझ में आया, उन्होंने देखा जॉन डन साहब ने भी एक ही चीज पर, स्पिरिचुअलिटी, गॉड, रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, कार्पे डियम, फिलॉसफी, इसी पर। एंड्रू मार्वेल साहब की भी पोएम उसी पर चल रही है, रिचर्ड कैश्यू भी उसी पर। और जब उन्होंने व्हेन ही वाज राइटिंग द बायोग्राफी ऑफ अब्राहम काउली, देन ही गॉट टू नो, देन ही अंडरस्टूड दैट ऑल दीज, उन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया कि ऑल दीज पोएट्स दे वर मेटाफिजिकल पोएट्स। क्यों? बिकॉज देयर पोएम्स वर बेस्ड ऑन गॉड, रिलीजन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब बेटा, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब वो हर चीज एब्स्ट्रैक्ट है जिसको आप फील करते हो, देख नहीं सकते हो, विच यू कैन नॉट सी, विच यू कैन नॉट टच, जिसको सिर्फ और सिर्फ आप फील कर सकते हो, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। इन सब ने उन्हीं कार्पे डियम पर फोकस किया। दीज पोएट्स, दे फोकस्ड मोर ऑन प्रेजेंट, लेस ऑन फ्यूचर। दे वर मेन ऑफ लर्निंग। इनकी पोएम में कहीं ना कहीं वो एसेंस था। दे हैड एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, गॉड एंड लव। एक लाइन मैं आपको बताऊं, क्योंकि अगला वीडियो जैसा मैंने कहा द कैनोनाइजेशन है जॉन डन का। आप जब इसको अभी से माइंड में रख लीजिए, उस पोएम की पहली लाइन मैं प्रूव करने चल रहा हूं, जैसा आई टोल्ड यू जॉन डन वॉज द फादर ऑफ मेटाफिजिक्स, और मैं प्रूव करूंगा। इनकी जरा पहली लाइन, आपके पास अगर बुक है तो आप ओपन करके चेक भी कर सकते हो, देख भी सकते हो कि जॉन द कैनोनाइजेशन की पहली लाइन है, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव।
आप देखो बेटा इस लाइन में आप दो वर्ड को फाइंड आउट करिए, आपको दो ऐसे वर्ड मिलेंगे, उन वर्ड को अंडरलाइन करिए जो क्लियरली ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेटाफिजिकल पर वर्क किया गया है। दो वर्ड ऐसे हैं, फिर से मैं लाइन को रिपीट कर दे रहा हूं, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। इन दिस लाइन देयर आर टू वर्ड्स, गॉड एंड लव। आप देखिए गॉड एंड लव, ये दोनों वर्ड क्लियरली बता रहे हैं कि फोकस कहां पर है, ह्यूमन बींग्स पर नहीं है, फिलॉसफी पर है, रिलीजन पर है, लव पर। लव देखिए, गॉड और लव को कितना अच्छे से देखिए आप इसमें मिक्स किया गया है। जितने भी कंटेम्प्रेरी पोएट्स थे, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, आप देखिए इतना मैंने अच्छे से एलैबोरेट किया, शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आंसर उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे कि मेटाफिजिकल पोएट्री। तो पहले आप मेटा मीन्स समथिंग विच इज ये डिस्टिंक्टिव, मैं बार बार कह रहा हूं कि मेटाफिजिकल इज अ डिस्टिंक्टिव स्कूल ऑफ थॉट। मेटा रेफर्स टू समथिंग विच इज अबव और बियॉन्ड, फिजिकल रेफर्स टू फिजिकल वर्ल्ड और बियॉन्ड द साइंस। सो मेटाफिजिकल पोएट्री वॉज स्पिरिचुअल, इट इज अ स्पिरिचुअल पोएट्री। थीम क्या है, इसके कैरेक्टर ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट इज मीन्स these poems were based on the concept of God, religion, love, abstract concepts, Christianity, intellectual and philosophical ideas, carpe diem पर बेस्ड थे। हमने पोएट्स के बारे में बता दिया कि they were certain important poets, फादर जॉन डन। मेटाफिजिकल टर्म को क्वाइन किसने किया? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। कब उन्होंने क्वाइन किया? When he was writing the biography of Abraham Cowley. So my dear students, I hope the term metaphysical poetry and metaphysical poets, character traits, characteristics, theme, ये आपको crystal clear हो गई है। Within a couple of days, I will be uploading the next video which is a famous poem of great metaphysical poet। कई बार बेटा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है, तो आप जब वहां लिखें तो जरूर लिखें, जब आप लिखते हो ना कि these beautiful lines have been extracted, रेफरेंस को लिखने का भी अच्छा आइडिया होना चाहिए, अच्छे वर्ड्स को चूज करिए। These beautiful lines have been extracted from the beautiful poem। अब सपोज हम ले लेते हैं ब्यूटीफुल पोएम द कैननाइजेशन, composed by a great, prolific, versatile and metaphysical poet जॉन डन। तो रेफरेंस हो गया। अब किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, वो कॉन्टेक्स्ट आपको फिर एक्सप्लेनेशन आता है। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। और इसका जो वट एवर आई टोल्ड यू, इसका जो नोट्स है वीडियो के लास्ट में मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं और अपना नोट्स आप खुद बनाएं, इट विल बी मच बेटर। नोट्स को आप एक कॉपी, उसके नोट्स, क्योंकि बीए सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इफ यू वांट टू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, ये आपकी बड़ी हेल्प करेगा। सो आई होप माई वीडियोज आर ऑफ सम हेल्प, दे आर हेल्पफुल टू यू ऑल। वेरी सून I will be back with another new topic, another new chapter. Till then, goodbye. Thank you so much.